Hello guys, welcome to Amazing Science Tutorial. I am Jupender Bhati. Today we will study about the topic autotrophic nutrition or nutrition in plants. Because in the last video we studied the modes of nutrition and I told you that mode of nutrition of two type, autotrophic nutrition and heterotrophic nutrition. दोनों न्यूट्रिशंस को पढ़ने के बाद अब हम जो करने वाले हैं उसमें से फर्स्ट का एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब इससे पहले जो भी बच्चे इसको फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहा है, जिन्होंने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड इसे कंप्लीट देखने के बाद अगर आपको अच्छी लगे वीडियो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑल्सो। थैंक यू सो मच। सो नाउ लेट वी स्टार्ट अ टॉपिक, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। I told you that auto means self, the nutrition which is prepared by self, जो खुद ही बनाया जाता है उस न्यूट्रिशन को क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। प्लांट्स की बात करें तो why plants are autotrophic, there is a reason. Plants are autotrophs means they can prepare their food by themselves. They are also known as producers because they can perform the food making process called photosynthesis. But how and why? Because they having green pigment in their bodies called chlorophyll. And how this process takes place? Actually this whole process takes place, the sunlight that is coming from the sun is absorbed by the green part of the plants containing chlorophyll, and that chlorophyll is helpful to absorb sunlight. After absorbing the sunlight, the water that is absorbed with the help of roots, the water that is absorbed by the help of roots from the soil से absorb जो किया हुआ water होता है, it will be combined with the oxygen, carbon dioxide, and that carbon dioxide was taken from the air. ओके तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एयर से लिया गया है स्टोमेटा के थ्रू, वाटर जो है रूट्स की हेल्प से सॉइल से लिया गया है। दोनों का कॉम्बिनेशन होने के बाद दे क्रिएट ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट। वी कॉल कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज को फॉर्म करने के बाद क्या बनाते हैं, साथ के साथ ऑक्सीजन गैस को रिलीज करते हैं एंड दैट इज रिलीज्ड इनटू द एयर। ये ग्लूकोज अगर बॉडी में काफी ज्यादा बन जाता है और यूज नहीं हो रहा है तो इट मींस दैट ग्लूकोज विल चेंज इनटू अ स्टोर्ड फॉर्म एंड दैट स्टोर्ड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इज कॉल्ड स्टार्च। तभी आपने सुना होगा कि जो भी फूड हम खाते हैं उसमें स्टार्च प्रेजेंट होता है और स्टार्च हमारी बॉडी में सलाइवा के थ्रू ब्रेक डाउन होता है। ओके एंड दिस थिंग विल ऑल्सो यू स्टडी इन योर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज न्यूट्रिशन इन द एनिमल्स। आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू। वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड दे आर कंबाइंड विद ईच अदर टू फॉर्म ग्लूकोज एंड स्टार्च. Starch means stored form of glucose, and oxygen, that oxygen will be released into the air. The question is कि this glucose will go where? Actually this glucose will go to the different parts of plants because plants have to use this glucose to take energy and to do various metabolic and life processes of itself. And where the whole process of photosynthesis takes place, actually the whole process of photosynthesis actually takes place in the green leaves, but this can also be performed into the green stems or green branches or buds. जो कली होती है फूलों की उनमें भी हो सकता है और stems में भी हो सकता है, but that should be green. Green means their cells containing chlorophyll, and chlorophyll is actually the main component that is required for the photosynthesis. But only chlorophyll is required? Not. Actually only chlorophyll cannot perform the whole process of photosynthesis. So now we are going to study a different part of this topic, that is called what are the raw material, and second term can be used as condition. raw material और condition कौन कौन सी होती है photosynthesis के लिए? Actually raw material आपके 4 होते हैं जो photosynthesis के लिए जरूरी होते हैं। First of all chlorophyll। अब आपसे क्वेश्चन इसमें ज्यादातर ये पूछा जाता है what are the raw materials, what are their sources, लेते कहां से है इन्हें और होते कौन से है। होते ये वाले हैं 4, लेकिन सोर्सेज कौन से है, ये वाले हैं। क्लोरोफिल कहां होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है, और वो क्लोरोप्लास्ट जो बॉडी प्लांट्स की होती है उनके मीजोफिल सेल्स में होता है। मीजोफिल सेल्स यानी ग्रीन सेल्स होते हैं, ठीक है। एंड सनलाइट इज टेकन फ्रॉम द सन। कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से लेते हैं हम, ठीक है, और जो कि स्टोमेटाज के थ्रू एंटर करता है लीव्स में।
H2O वाटर कहाँ से लेते हैं? सॉइल से लेते हैं। और सॉइल कहाँ से, किसकी हेल्प से लेते हैं? रूट की हेल्प से एब्जॉर्ब होता है। इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, रॉ मटेरियल होने के बाद हमारे पास इवेंट्स आते हैं कि किस किस वे में फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होने की कोशिश होती है। एक्चुअली स्टेप बाय प्रोसेस होता है। पहला स्टेप ये है कि सबसे पहले क्लोरोफिल जो होगा वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा, दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय द क्लोरोफिल। सेकेंड स्टेप इज कन्वर्जन ऑफ लाइट, जो सनलाइट एब्जॉर्ब की है उस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बॉन्ड्स की फॉर्म में। एटम्स और मॉलिक्यूल जो होंगे कार्बन डाइऑक्साइड और H2O के, उनको क्या करेंगे? एक साथ जोड़ने की और तोड़ने की कोशिश करेंगे। सो इट देयर इज ए स्प्लिटिंग ऑफ H2 वाटर जो एब्जॉर्ब किया था उसको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस के अंदर स्प्लिट कर देते हैं। रिडक्शन का मतलब होता है किसी में से ऑक्सीजन को छीन लेना या हटा देना। तो रिडक्शन किसका होगा? कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड में O2 जो लगा हुआ है, इसको हाइड्रोजन जो यहां पर गैस बनी है वो इसको ले लेगी इससे, ताकि ये सब मिलकर क्या बना सके? ग्लूकोज बना सके, C6H12O6। इसको फॉर्म करने के बाद एक्चुअली साथ साथ किसकी हेल्प लेती है? केमिकल एनर्जी की हेल्प लेती है ये सब करने के लिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको याद रखनी है कि ये तीनों स्टेप हमेशा सीक्वेंस में होंगे, बट जरूरी नहीं है कि ये तुरंत हो, कि जैसे अभी 1 सेकंड पहले ये हुआ है तो इसके जस्ट सेकंड बाद इसका होना जरूरी है। नॉट, ये कभी भी हो सकता है, चाहे थोड़ी देर बाद होता है, 1 घंटे बाद होता है। दैट डिपेंड्स अपॉन द प्लांट्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ सनलाइट। काफी सारे फैक्टर्स इस पर डिपेंड करते हैं, बट आपको याद रखना है कि जितने भी स्टेप्स होंगे वो एक दूसरे के बाद होंगे। बट इट इज नॉट important or it is not need to take place one after the other immediately। तुरंत होना उनका जरूरी नहीं है, बट होना सीक्वेंस में जरूरी है। पहले ये प्रोसेस, फिर उसके बाद ये, और फिर ये होता है। These are the events that takes place during the photosynthesis। I think this topic is clear to you। कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। इस टॉपिक को इतना स्टडी करने के बाद आपकी बुक में एनसीईआरटी में स्पेशली क्या दी गई है? 3 एक्टिविटीज दी गई है, एंड दैट 3 एक्टिविटीज आर शोइंग दैट दीज रॉ मटेरियल्स आर एक्चुअली हाउ मेनी इंपॉर्टेंट दे आर फॉर द फोटोसिंथेसिस। बिकॉज क्लोरोफिल कितना जरूरी है फोटोसिंथेसिस होने के लिए, इसके ऊपर एक एक्टिविटी है। सनलाइट कितनी जरूरी होती है, उसके ऊपर एक एक्टिविटी है। और वाटर कितना रिक्वायरमेंट होता, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड कितनी रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए एक एक्टिविटी दी हुई है। वाटर का तो ऑब्वियस आप जानते हो, वो तो जरूरी होता है। ठीक है, तो तीनों के ऊपर बेस्ड एक्टिविटीज है। उन एक्टिविटीज को हम स्टडी करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और इसके साथ साथ इसमें डायग्राम दिया हुआ है आपका लीफ के स्ट्रक्चर का। लीफ का स्ट्रक्चर है, कटिंग सेक्शन है उसका, उसमें दिखाया हुआ है कि लीफ की कितनी लेयर्स होती है और उसमें किस तरह का स्ट्रक्चर होता है, वो हम सब स्टडी करेंगे। ठीक है, अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए कीप शेयरिंग, keep liking, take care and see you in the next video।